جی دوستو، میں اگسٹن مشتاق آپ کا ہوسٹ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کا دوست آپ کو آپ ہی کے یوز شو جس کا نام ہے پورے دل سے، اپنے پورے دل سے ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندگی میں اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کو بہتر بنانا اور زندگی میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ پورے دل سے بار آپ کو اپنے ٹاپک سے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح ہم زندگی میں بہتری کی طرف آگے بڑھیں، یا کس طرح ہم زندگی میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے لوگوں کی مدد کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھی طرح آگے بڑھانے والے ہوں۔ آج بھی ایک اچھا سا ٹاپک آپ کی خدمت میں رکھنے کو ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے زندگی کو اچھی طرح سیٹل کرنا اور زندگی میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی بہتری کے لیے آگے پیش کرنا۔ اور وہی بات ہے، جب آپ ایک اچھا قدم اٹھائیں گے نا تو آپ کو دیکھ کر پیچھے بہت سارے اچھے قدم اٹھانے والے آگے بڑھنے لگ جائیں گے۔ تو آپ نے رہنمائی کرنی ہے اور پورے دل سے بار آپ کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے، کچھ کریں گے تو کچھ بنیں گے، اور کچھ بنیں گے تو زندگی کو آگے اچھی طرح گزار پائیں گے۔ ایک اچھا سا ٹاپک آپ کی خدمت میں رکھنے کو ہے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا، لیکن اس سے پہلے ملتے ہیں اپنے دوستوں سے۔ برٹنی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ برٹنی، آج بڑا اچھا ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہیلپ کرے گا ایک اچھی طرح زندگی میں کو بہتر بنانے میں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ لائک آئی کین سے کہ ایک تو ایکسائٹمنٹ بہت ہے، بہت ہی ایک نالجیبل ٹاپک ہے، اینڈ ہماری یوتھ کے ساتھ ساتھ کافی لوگ جو نہیں بھی ان چیزوں کو لائک کیئر کرتے یا فالو کرتے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایک نالجیبل ہو جائے گا کہ ہمیں اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا فوائد ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ہم کس پر بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں لاز اینڈ سوسائٹی پر۔ جی دوستو، بہت ضروری ہے زندگی میں رہتے ہوئے لو، قانون کو اپنی زندگی میں ان کی اہمیت رکھنا، قوانین کو ماننا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں بھی ہمارے مختلف قوانین ہوتے ہیں، پھر جب ہم سکولز میں جاتے ہیں اسکولوں میں بھی ہمیں مختلف قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جب ہم جابس پر جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں مختلف قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم سوسائٹی میں کسی رہتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بھی ہمیں مختلف قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ قوانین ہوتے ہیں ہماری بہتری کے لیے، یہ قوانین ہوتے ہیں ناانصافی کو روکنے کے لیے، یہ قوانین ہوتے ہیں انصاف کو پھیلانے کے لیے۔ تو بے حد ضروری ہے قوانین کو فالو کرنا، قوانین کے مطابق آگے بڑھنا، اور اپنے آپ کو ترقی کی طرف آگے بڑھانا، اور اپنے ساتھ دوسروں کو ترقی کی طرف آگے بڑھانا۔ بہت ساری اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں ایرک سے۔ ایرک، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں اگسٹن، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایرک، مجھے آپ آغاز میں بتا دیں کہ آپ کی نظر میں لاز اینڈ سوسائٹی کے کیا معنی ہیں؟ اگسٹن، لا اینڈ سوسائٹی کا ٹاپک جو ہے یہ معاشرتی عدل و انصاف سے متعلق قانون کے بارے میں ہے، اور قانون دراصل اجتماعی اصولوں پر مشتمل ایسا نظام ہے جو کسی ادارے کی طرف سے، عموماً حکومت کی طرف سے، کسی بھی معاشرے کی ترقی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے، اور اسی پر جو معاشرے کے جو اجتماعی رویہ ہے وہ اسی پر اس کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہی بات ہے، قانون بنتے ہیں ہماری بحالی کے لیے، قانون بنتے ہیں ہماری بہتری کے لیے، قانون بنتے ہیں تاکہ ہم ناانصافی سے بچیں، ناانصافی خود بھی نہ کریں اور ناانصافی کسی کے ساتھ ہونے بھی نہ دیں۔ تو بہت ضروری ہے بھیا ایسے ٹاپکس پر بار بات کرنا، کیونکہ پورے دل سے میں بار ہم ایسے ٹاپکس رکھتے ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، جو کہ شاید ہمارے لوگوں کے لیے بہت چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایکچوئل میں ان کا کتنا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے متعلق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے کے پورے لائف سٹائل کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، تو بہت ضروری ہے مختلف وہی بات ہے میں نے بتایا، جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بھی مختلف قوانین کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی تو ایسے بھی مثالیں ملتی ہے کہ اگر ایک ٹائم کے بعد ہم آگے تو اس ٹائم پہ ہمیں کھانا نہیں ملے گا، اس مین کہ ہمیں فالو کرنا ہے، اگر فالو کریں گے تو زندگی میں بہتر بنیں گے۔ تو ایسے ہی ہے اپنے معاشرے کی جب ہم بات کریں، کیونکہ بات ہم کریں لاز اینڈ سوسائٹی کی، جب لاز ہماری زندگیوں میں ہوں گے، جب ان کا عمل ہماری زندگیوں میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی پھر بہتری کی طرف بڑھے گی، نہ محض ہم بلکہ ہماری زندگی کو دیکھ کے دوسرے بھی بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو وہی بات ہے جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ بار ہم بتاتے ہیں آپ نے قدم اٹھانا ہوتا ہے اور آپ کے پیچھے بہت سارے قدم اٹھیں گے، کیونکہ آپ نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، اور رہنمائی میں سمجھتا ہوں اسی وقت ہم کر پائیں گے جب ہم خود اس پر عمل کر پائیں گے، ہم خود ان باتوں پر ہماری زندگیوں پر ایسا عمل کریں گے اور ہم اپنے قوانین کی اہمیت کو سمجھیں گے یا ان کی عزت کریں گے۔ برٹنی، آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر قوانین کی کیا اہمیت ہے؟ لائک آئی کین سے کہ ہمارے پاس جو سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹیز بنتی ہی لاز سے، کافی لاز ہوتے ہیں جو لائک ہمیں فالو لازمی کرنے پڑتے ہیں، جیسے آپ نے کہا
कि एक टाइम ऐसा आता है घर में कि आप इस टाइम से देर से आओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल। वैसे ही काफी सोसाइटीज में दरवाजे बंद हो जाते हैं, वाई फॉर देयर ओन सेफ्टी, लाइक दे आर गिविंग अ सेफ्टी प्रोसेस कि हाँ अभी अगर इस टाइम के बाद कोई आएगा so like it will be forbidden। और इन्हीं चीजों से शायद उन सोसाइटीज में गलत काम होने से बच जाते हैं। अगर हम ऐसी ही चीजों को फॉलो करते रहेंगे, अपने लॉस को फॉलो करेंगे, तो हम शायद काफी 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 बेहतर जगह पे लाइक स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारे लॉज जितने भी हैं हमारी सेफ्टी के लिए बने गए, हमारे साथ अच्छाई के लिए बने गए, हमारे लाइक जैसे आपने कहा नाइंसाफी तभी होती है जब हम लॉ फॉलो नहीं करते, बिल्कुल। एंड जब व्हेन वी फॉलो द लॉ देयर इज नथिंग लाइक हम बोल सकते हैं कि नाइंसाफी हो रही हो, क्योंकि आपको खुद को पता है कि वो गलत चीज है और आप खुद भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वही बात है, जब हम कवानीन को फॉलो करते हैं तो हमारा एटीट्यूड फिर अच्छा होता है। जब हम कवानीन को फॉलो करते हैं तो इससे नज़र आता है कि एक्चुअल में हम कितनी अपने मुल्क की इज़्ज़त करते हैं, अपने लोगों की इज़्ज़त करते हैं, अपने मुआशरे की इज़्ज़त करते हैं। अरे क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑगस्टिन, इस टॉपिक को बात करते हुए या इसके ऊपर बोलते हुए या गुफ्तशनीद करते हुए जो हमें बड़ी वाज़िया तस्वीर इस पर मिलती है वो ये है कि जब किसी चीज़ को एक अच्छी शक्ल देनी होती है ना तो उस पर कानून लागू कर दिया जाता है। जैसे आपने बात की कि अगर लेट घर आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो माँ बाप कानून लागू करते हैं या कोई लोभ दे देते हैं उस बच्चे को, कोई टर्म्स एंड कंडीशन दे दी जाती है कि अगर तो वो उन हुक्मों को मानेगा, उन अहकाम को या रूल्स को जो घर में बनाए गए हैं माँ बाप की तरफ से उनको मानेगा, तो दरअसल वो एक अच्छा शख्स बनेगा और माशरे में भी उसकी एक तस्वीर, उसका कैरेक्टर, उसकी शक्ल अच्छी होगी, नजर आएगी। तो ऑगस्टिन, माशरे को अच्छी एक शक्ल देने के लिए कानून नाफिज कर दिए जाते हैं और उस माशरे की अच्छी शक्ल उस शख्स पे, उन लोगों पर रिलाय करती है। अगर तो वो कानून को मानेंगे तो फिर ही माशरा अच्छा दिखेगा दूसरों के सामने, वरना तो वो बिगाड़ का सबब बनेगा और दूसरों के सामने भी बुराई का सबब बनेगा। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कानून बनते ही इसलिए ताकि हम अपने आप पर गौर करें और अगर जो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उन कवानीन को देख लें कि कवानीन हमें इजाज़त देते हैं या नहीं देते। तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पर मज़ीद शेयर करने के लिए, लेकिन चले मिलकर आपको पहले एक सुनाते हैं अच्छा सा पंजाबी सॉन्ग। ये गीत है इरफान जुगनू का। इससे पहले कि हम गीत सुने पहले उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। जी इरफान, पूरे दिल से हम आपको हमारे यूथ शो पूरे दिल से में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अच्छे गीत की। यकीनन ये गीत आपका बहुत सारी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस ठहर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये गीत हमें क्या पैगाम देता है। थैंक यू ब्रदर अगस्टिन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ख़ास तौर पे इस गीत को पसंद करने के लिए। तो इस गीत को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब हम अपनी लाइफ में यीशु मसीह को ले आते हैं और यीशु मसीह का जब हम पल्ला पकड़ लेते हैं तो फिर हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात होती हैं, टेंशन्स होती हैं, वो सारी हमसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नज़दीक रहकर हम शैतान से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आज का जो हमारा टॉपिक हम शेयर कर रहे हैं, लॉज एंड सोसाइटी, इसके बारे में भी कुछ अपने ख्यालात बताएं। जी ब्रदर अगस्टिन, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोई भी मुआशरा होता है या कोई भी इदारा होता है तो उसमें जो कवानीन होते हैं वो उसकी बेहतरी और अच्छाई के लिए होते हैं। तो हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद है कि हमें ये कवानीन जो हैं इनको अच्छे और बेहतर तरीके से मानने चाहिए ताकि हम अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में अच्छा और बेहतरीन शहरी साबित हो सकें। थैंक यू। और पूरे दिल से के मुतालिक कोई अपने व्यूज़ शेयर करें। जी ब्रदर अगस्टिन, बहुत शुक्रिया। और आपके प्रोग्राम पूरे दिल से के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बड़ी मालूमात वाली चीज़ें अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जो हमारी ही बेहतरी के लिए होते हैं और आप हमारी यूथ को एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली मुझे, और आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अपने जलाल में इसी तरह इस्तेमाल करता चला जाए। थैंक यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे टाइम का। यकीनन ये गीत हम सब की ब्लेसिंग्स का भी बाइस ठहरेगा। थैंक यू सो मच। बेड़ी डोले हर एक चेला यीशु नु टोले, चेले डर के बेड़ी डोले हर एक चेला यीशु नु टोले। यीशु मारी चिड़कते तूफान, यीशु मारी चिड़कते तूफान, उस वेले खड़िया चढ़िया चढ़िया जिन्नू यीशु दा रंग चढ़िया 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 जिन्नू यीशु दा रंग चढ़िया,
वेलकम बैक व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच ब्रदर इरफान खूबसूरत गीत के लिए और स्पेशली उस मैसेज के लिए जो इस गीत के वसीला से आपने कन्वे किया। बड़ा खूबसूरत गीत था जिसके वसीला से हमने बरकत पाई और ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉज को मानना। और गीत बड़ा खूबसूरत हमने सुना कि जो खुदा का पल्ला पकड़ता है, जो खुदा का पल्ला पकड़ता है, दर हकीकत वो अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। तो मैसेज कुछ इसी तरह का है। तो दर हकीकत जो लॉज को मानता है वो अपनी सोसाइटी को एक अच्छे तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एरिक मुझे ये भी बताया कि हम किस तरह अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज को फॉलो करते हुए। ऑगस्टिन, बड़ा अच्छा सवाल है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात करना चाहूँगा। जब हम रोड पे होते हैं, सड़क पे जा रहे होते हैं, तो सिग्नल बंद होता है, यानी रेड लाइट शो करे, तो आगे जो रोड है जहाँ से हमें क्रॉस करना है वहाँ कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन हम भाग जाते हैं कि हमें जाना है क्योंकि रोड खाली है। और अगर तो रश हो तो नॉर्मली लोग रुक जाते हैं। असल में नौजवान होते हुए हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस कानून को माने। अगर तो रोड खाली भी है फिर भी हम वहाँ रुके रहें, तो हमें देख के जो बड़े और छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, वो सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटों के बजाय बड़े भी इस तरह की गलती कर रहे होते हैं जो कि किसी के और हमारे नुकसान का सबब बनती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ रुक जाऊंगा और सब्र करूंगा कि वो लाइट जो है वो ग्रीन में टर्न हो जाए तो ही मुझे जाना चाहिए, तो कोई बड़ा शायद मुझे देख के सीखे कि यार ये शख्स अभी तक खड़ा है हालांकि रोड खाली है। तो इस तरह से हम अपना एक अच्छा हिस्सा अदा कर सकते हैं लॉज को मानने में। जब हम इस तौर पे लॉज को मानेंगे तो दूसरों की भी बरकत का या तरक्की का सबब बनेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं, मैं समझता हूँ उन कवानीन की जहाँ से ये सारे कवानीन बने हैं, यानी कि 10 अहकाम के। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए जिस्मानी ज़िंदगी के लिए तो मुख्तलिफ हमें कवानीन मिलते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारी हुकूमत के तरफ से मुख्तलिफ कवानीन मिलते हैं। लेकिन इन जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ रूहानी कवानीन भी हमें बहुत सारे मिलते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारी बेहद रहनुमाई करते हैं। और मैं समझता हूँ जो एक टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और जिनके वसीला से आज हम ज़िंदगी को एक अच्छी तरह बढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी में अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिनके वसीला से हमें पता चला है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, हमें फ़र्क पता चला है कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए है, कौन सा रास्ता हमारे लिए नहीं है। तो ब्रिटनी, आप 10 अहकामात के बारे में क्या कहेंगी? I can say that the 10 commandments जो हमें दिए गए हैं, मोसेस से मिले, मोसेस को दिए गए, हमें फॉरवर्ड किए गए, वो हमारी बेहतरी के लिए खुदा ने दिए ही इसलिए थे ताकि हम एक ही पाथ पे रहें। We can stay at one path and we can follow what he is telling us. And शायद अगर हम सिर्फ 10 commandments follow कर रहे हैं, so we have a very bright future plus a very good life. बिल्कुल, क्योंकि हर कानून का मैं समझता हूँ आगाज ही वहाँ से होता है। आगाज ही वहाँ से हो रहा है and we are learning from it. अभी भी शायद अगर हम कभी माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करें, so then we have a point in our head, हमारे बड़े ही हमें माँ बाप की कहते इज्जत हैं जो करो। आपने अभी करना है वो आगे आपने जाके काटना है। So especially what you are sowing, you have to cut that only thing. तो आप उसके लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप अपने पेरेंट्स की भी उतनी इज्जत करें, सारे कमांडमेंट्स वैसे ही फॉलो करें जैसे आप एक कमांडमेंट को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। एरिक, आपने मुझे बताया कि आप इनके बारे में क्या कहेंगे 10 अहकामात के बारे में? ऑगस्टिन, 10 अहकाम जो है पूरी दुनिया में ज़्यादा जाने जाते हैं। फ्रॉम जेनेसिस टू ड्यूट्रोनोमी, पैदाइश से इस्तिस्ना तक, हमें यानी तोरा में हमें 10 अहकाम ये बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं। और दर हकीकत ये 10 नहीं बल्कि कुल 613 है। पूरे हमें पैदाइश से इस्तिस्ना तक हमें 613 अहकाम मिलते हैं जो कि बड़ी खूबसूरती से वजाहत करते हैं कि किस तरह हम खुदा से जुड़ सकते हैं, अपने माशरे में अच्छे तरीके से या अच्छे तौर पर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो जो 10 अहकाम है, दीज आर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द सिविलाइज्ड सोसाइटीज। तो हर सोसाइटी में इनको बड़े अहमियत दी जाती है। खून ना करना, चोरी ना करना, माँ बाप की इज्जत करना, ये हर मुल्क में सिखाया जाता है। तालीमी तौर पे यानी तालीमी इदारों में और हमारी हुकूमती तौर पे हमें असूल दिए जाते हैं कि हमें खून नहीं करना, चोरी नहीं करनी, इस तरह के काम, क्योंकि माशरे का बिगाड़ बनता है। तो ये सारे अहकाम कलाम मुकद्दस से ही हमें मिले हैं। और कलाम मुकद्दस, ये मैं समझता हूँ जो कलाम मुकद्दस को पढ़ता है वो दर हकीकी तौर पे असल तरीके से समझता है कि अहकाम है क्या और कितना ज़रूरी है इनको फॉलो करना या इनके मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना। बेहद ज़रूरी है इनके बारे में सीखना और बार इनके मुतालिक टीचिंग को हासिल करना और इनको अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना। नाम है ज़मीनी ज़िंदगी में, बल्कि मैं समझता हूँ हम एटर्नल लाइफ की तरफ भी आगे बढ़ना। तो चले मिलकर इस सेगमेंट को देखते हैं, फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम इन अ सेगमेंट। तो जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि हम आगाज़ ही से बात करें कि ऐसे टॉपिक पे विच इज़ मोर टू बी अ सोशल टॉपिक, लॉज एंड सोसाइटी। तो बिब्लिकल एस्पेक्ट से सीखना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए हमने आज इस सेगमेंट में अपने रिप्यूटेड गेस्ट को दावत दी है कि वो बिब्लिकल एस्पेक्ट से हमें सिखाएं कि इस टॉपिक में कलाम मुकद्दस हमें क्या काउंसलिंग देती है। तो आज इस टॉपिक पर जिस गेस्ट को हमने बात करने के लिए बुलाया है, ही इज़ यंग एंड टैलेंटेड
انہوں نے سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے اپنا ایم ڈیو کمپلیٹ کیا ہے اینڈ ناؤ ہی از سرونگ ایز اے بشپس کمسری ان لودیکیا چرچ. تو آئے آپ کو ملاتے ہیں ہمارے ریپیوٹیڈ گیسٹ پاسٹر اگسٹن ناز. ویلکم ٹو آور شو پاسٹر. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خداوند کا شکر ہے. تو آپ ایز اے پاسٹر خدا کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس خدمت میں؟ سب سے پہلے تو بردر ایرک میں شکر گزار ہوں خداوند کا جس نے مجھے یہاں پر آپ سبوں کے سامنے میں یہاں آیا. خداوند آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, پورے دل سے کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا, اور مزید آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام میں. بالکل. تو سب سے پہلا سوال جو میرے پاس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعتی احکامات ملتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ جب موسیٰ کو یہ احکامات دیے گئے یعنی 10 احکام تو ایک خاص وقت میں ایک خاص قوم کے لیے دیے گئے. آج ہم پوری دنیا پر اس کا اطلاق کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور دنیا کے اطلاق سے مطابق جیسا آپ کا سوال ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہم نہیں دیکھنا چاہتے, خدا دیکھنا چاہتا ہے. اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس پرٹیکولر ایونٹ پہ پہنچیں جہاں پر خدا یہوہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو 10 احکام دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جا کے دکھا یا بتا, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ خدا کے مطابق 2 لوہے لے کر خداوند کے پاس پہنچتے ہیں. تو جب خدا کے پاس وہ جاتے ہیں تو خدا اس کے اوپر 10 احکام کو لکھتے ہیں. بالکل. لکھنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے پاس 2 لوہیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر 10 احکام لکھے ہوتے ہیں, 10 کمانڈمنٹس. تو اب جب ہم اس واقعے کی آ کر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں, ہمیں اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہاں پتہ چلتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح سے ایک شرع کے عالم, دا ماسٹر آف دا لا, دا ماسٹر آف دا تناخ تورا, اس شخص نے یہ سوال کیا, اس نے کہا کہ ماسٹر مجھے پتا ہے کہ تو استاد ہے, تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا حکم ہے وہ کون سا ہے, وچ از دا گریٹسٹ کمانڈمنٹ آف دا لا. خداوند یسوع مسیح نے اس سے دیکھا, اس سے کہا, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شما اسرائیل ادونائی ایلوہینو ادونائی احاد. جب ہم احاد کی بات کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا احاد اسپیسیفکلی عبرانی لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, تو احاد کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے یونائٹڈ ہول, یعنی کہ اکٹھے طور پر ایک, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلورل ان ون نیسٹ, یعنی کہ 3 in 1. بنی اسرائیل قوم واحد کو تو جانتی تھی لیکن وحدانیت کے اندر کثرت کو نہیں جانتی تھی. تو جب ہم استعمال کرتے ہیں شما اسرائیل ادونائی ایلوہینو ادونائی احاد, تو اس کا مطلب یہ ہے ادونائی گاڈ دا فادر, ایلوہینو دا سن, ادونائی احاد دا ہولی اسپرٹ, ایکچولی یونائٹڈ ہول, یعنی گاڈ دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ از ون. تو خدا نے جب یہ بات اس سے کہی تو اس نے اس چیز کو سراہا, اس نے کہا کہ ویری نائس. پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو ریپلائی دوبارہ سے کیا, اس کو کہا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری اسٹرینتھ سے, طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ. بالکل. اس محبت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے وہی چیز, خداوند یسوع مسیح نے چاہا کہ صرف اس وقت کے لوگ نہیں بلکہ آج ہم بھی اس چیز پر عمل کریں کہ ہم ان حکموں کا اطلاق یا اس کی پاسداری کریں. ونڈرفل. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے, اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے ان 2 احکامات کو بتایا کہ کس طرح ہمیں شریعتی اعتبار سے وہ احکامات دکھتے, اور نئے عہد نامے میں مسیح یسوع نے بڑی خوبصورتی سے ان احکامات کو بتایا. تو دوسرا سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ کہ الہی احکامات تھے جو کہ موسیٰ کو دیے گئے, اور صرف نہ موسیٰ نے بلکہ پوری بنی اسرائیل قوم نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا اور اسے دیکھا, پھر بھی احکامات کے ہونے کے باوجود بھی بار بار وہ گناہ کرتے تھے. تو الہی احکامات کس طرح ہم مشکلات میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بردر ایرک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو بار بار گناہ کا جو عنصر ہے وہ اس وقت سے لے کر آج بھی نسل انسانی میں ہے. بالکل. تو ہمیں اس کا جو جواب ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بہت اچھا نظر آتا ہے. وہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت ہے, ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس لائی گئی, اس کو کہا, شرع کے عالم, فقی فریسی اور دیگر ایسے لوگ جو شریعت کو بہت پیروکار ہیں, جو مانتے ہیں حکموں کو, انہیں کہا کہ ربی تو دیکھتا ہے کہ اس عورت نے عین وقت یہ فیل کرتے ہوئے پکڑی گئی, تو اس کے لیے لازم ہے, شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اس کا مطلب میں نے یہ بات کیوں آپ کے سامنے دہرائی, اس وجہ سے دہرائی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں, جب بنی اسرائیل قوم بار بار گناہ کر رہی ہے اور گناہ میں لوگوں کو پکڑ بھی رہی ہے, تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جب یہ فیصلہ آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح لا اینڈ جسٹس سے اس کا انصاف کرتے ہیں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکویلٹی اینڈ جسٹس, انصاف اور برابری سے. خداوند یسوع مسیح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو تمہارے اندر کوئی نہ کوئی گناہ. یسوع مسیح نے کہا تم میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو پہلا پتھر مارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں,
तो बार बार गुनाह करने से मुराद ये है कि हम सब गुनहगार हैं। यीशु मसीह ने उस औरत को उठाया, उससे कहा कि जब सब ने पत्थर फेंक कर चले गए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, जब मैं भी नहीं लगाता, तो मैं तुझे बेचता हूं, जब फिर गुनाह ना करना। मैं ये समझता हूं कि बार बार गुनाह करने का अवसर आज भी है, बनी इसराइल कौम में भी था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत को भेजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि जा फिर गुनाह ना करना। जब हम इस चीज़ को देखते हैं हिब्रू ग्रीक के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, तो ब्रदर एरिक ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इस तरह से खूबसूरत है कि जब 12 बरस की औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से एक ताकत निकली, जिसको यूनानी जुबान के अंदर कहते हैं दुनामिस, जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं डायनामिक पावर। खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि मुझे किसने छुआ है? उन्होंने कहा रब्बी पूरे लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तू कहता तुझे किसने छुआ है? यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से शिफा की कुव्वत निकली है, ताकत निकली है। जो कुव्वत यानी इंग्लिश का वर्ड है पावर, इसके लिए जो ग्रीक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है डायनामिक पावर यानी डुनामिस। खुदावंद यीशु मसीह से डायनामिक पावर निकली है। वो डायनामिक पावर जो है वो उसने उस औरत को दी, जा फिर गुनाह ना करना। इसका मतलब ये है कि हम सब बार बार गुनाह करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा पेकर है जो मुझे और आपको बार बार गुनाह ना करने की ताकत देता है। वंडरफुल, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल पर समझाया। तीसरा सवाल जो मेरे पास है वो बड़ा ज़रूरी सवाल है। तो तारीख़ी तौर पे हमें हम्मुराबी बादशाह के अहकामात मिलते हैं जो कि मूसवी शरीयत से मुताबिकत रखते हैं, तो क्या इंसानी अहकामात को भी वही दर्जा हासिल है जो हमें इज़्ज़त वही देनी चाहिए जो हम खुदा के इलाही अहकामात को देते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने किया। जब हम हम्मुराबी का जिक्र करते हैं, इंग्लिश में लफ्ज़ है हम्मुराबी, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रदर एरिक ये जो लफ्ज़ है ये है हम्मुर अबी। हम्मुर का मतलब होता है गधा और अबी का मतलब होता है बाप। हम्मुर अबी, हम्मुर अबी ये लफ्ज़ है, उर्दू में हम इसकी ट्रांसलेशन इसको ऐसे करते हैं। जो हम्मुर अबी है, हम्मुर अबी ने हम्मुर अबी के कुछ कवानीन थे जो उसने बाबुल का, चूंकि वो बादशाह था तो उसने दिए। बिल्कुल। और जैसे आपने खुद बोला कि ये इंसानी कवानीन थे, क्योंकि हम्मुर अबी एक इंसान था, बादशाह था, हुक्मरान था। इल्म इलाहियात का तालिब इल्म होने के नाते इसकी जो सबसे बुलंद, जिसकी वजह से मैं ये दावेदार हूँ कि ये मुताबिकत नहीं रखते, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि गुनाह इंसान की सरिश्त में है, लेकिन खुदा ने उस गुनाह के ऊपर सिर्फ इंसान को सजाएं नहीं दी बल्कि उस गुनाह को खत्म करने का बंदोबस्त भी किया जो हम्मुराबी के खुदा ने नहीं किया। इसलिए मैं ये कहता हूँ इल्म इलाहियात का तालिब इल्म होने के नाते कि हमारा जो खुदा है वो इसलिए मुताबिकत नहीं रख सकता उन अहकाम के साथ क्योंकि वो सिर्फ गुनाह के लोगों को सजा नहीं देता बल्कि वो गुनाह को ख़त्म करने का बंदोबस्त भी करता है और उसको अपनी कौम की फिक्र है। मैं इसकी एक आम मिसाल दूंगा कि जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उस शख्स को जान से नहीं मार देते बल्कि उस बीमारी का इलाज करते हैं। हमारे खुदा ने इंसानों को जान से नहीं मारा बल्कि उस बीमारी का, उस गुनाह का इलाज किया जिसकी वजह से उसने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने उन गुनाह को और मौत को जड़ से ख़त्म किया ताकि मैं और आप नस्ल इंसानी खुदा के साथ रिकन्सिलिएशन मिलाप कर सकें। ये खुदा मूसा का खुदा है जो एक काम की पासदारी करने को कहता है कि मैं और आप दोबारा उससे मिल सकें, मसीह में रफाकत रख सकें। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से हमारे गेस्ट ने आज इन तमाम सवालात के जवाब दिए जो कि हमें दरपेश थे और यकीनी तौर पे आपके जहन में भी होंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा पास्टर आपका कि आप आए और इन तमाम सवालात के आपने जवाब दिए और खुदा के कलाम को हम तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। इसी के साथ आए मिलते हैं अपनी टीम से मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, इट वाज रियली नॉलेजेबल एंड आई कैन से जैसे कि हम 10 कमांडमेंट्स पे ही बात कर रहे हैं, नॉट ओनली वन सिंगल कमांड बट आई गेस ऑल द 10 आर इक्वली लाइक टू बी फॉलोड। बहुत अच्छी बात है। और लॉज एंड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी की जहाँ तक हम बात रहे तो कलाम मुक़द्दस में ये भी मिलता है कि अपने पड़ोसी से अपने मानिद मोहब्बत रखो। ये भी हमारा एक किरदार है जो कि ज़मीन पर रहते हुए, अपनी सोसाइटी में रहते हुए हमने पूरा और पूरे दिल से हक अदा करना है। अपनी मानिद, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। सो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि इस बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी वाली टॉपिक ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ये ऐसी ज़िम्मेदारी है जो मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का होना बेहद ज़रूरी है। लॉज को फॉलो करना, लॉज कवानीन को फॉलो करना, कवानीन की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में समझना, इनकी इज़्ज़त करना बेहद ज़रूरी है। यही हमारी वही बातें पूरे लाइफस्टाइल को सामने ले आते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या सीखा है और हम क्या आगे अपनी ज़िंदगी में, किसी को हमारी ज़िंदगी से क्या मिल रहा है, अच्छाई मिल रही है या दूसरी बातें मिल रही हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहें, अपने छोटे छोटे अमल से अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाएं, अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं और लॉज को फॉलो करें। छोटी छोटी आदतें हैं, अगर
एकदम से तो मैं समझता हूँ हमारी आदत नहीं बनेगी इनको फॉलो करने, लेकिन छोटे छोटे एक्ट से अब जब हम इनकी कोशिश करेंगे तो इनकी आदत हमें हो जाएगी, छोटी छोटी बातों की हमें आदत हो जाएगी, हमें कैसे कैसे फॉलो करना है हर एक बात को जो हमारे लिए बेहतरी की तरफ हमें आगे लेकर जाएगी। सो बार बार हम कहते हैं कि आपकी अप्रिसिएशन से हमारे हौसले बुलंद होते हैं, आपकी सपोर्ट से हम इस लायक बनते हैं कि हम पूरे दिल से को अच्छी तरह आपकी खिदमत में रखने वाले हों, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपकी खिदमत में रखने वाले हों। सो दोस्तों, हमने आगाज़ में ही बहुत पहले हमने एपिसोड में हमने कहा था कि हम अपने दोस्तों के कमेंट्स भी ऐड करेंगे, हम अपने दोस्तों के अप्रिसिएशन लेटर भी ऐड करेंगे। सो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, आज से हम अपने दोस्तों के कमेंट्स भी अपने शो में ऐड करेंगे। सो आगाज़ करते हैं। एरिक, आप कोई कमेंट्स शेयर करें जो आपके पास हैं। अगस्टिन, हमें बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, हमारे फीडबैक हमें जो मिलता है और बड़ी खुशी होती है, इससे हमें बढ़ने का मौका मिलता है। और पहला कमेंट जो मैं पढ़ना चाहूँगा वो ये है कि आई लाइक योर ऑल प्रोग्राम्स माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज़ फ्रॉम जूलिया मार्गरेट, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा कमेंट है, मेरा नाम रोमस मंजूर है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, होली चाइल्ड संडे स्कूल मिनिस्ट्री। मैं खुद एक संडे स्कूल का टीचर हूँ। मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत पसंद है और आपके प्रोग्राम के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच रोमस, बहुत खूबसूरत कमेंट। मैं भी शेयर करता हूँ कमेंट्स। ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई लाइक योर शो एंड received many blessings, good job, God use you more, all team members stay blessed and more blessings। इनके आगे नाम नहीं लिखा फिर भी Anonymous। थैंक यू सो मच आपका भी जिन्होंने भी लिखा है, मैनी ब्लेसिंग फॉर यू। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जब आप हमें इतनी सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी पूरा हक है आपको सपोर्ट करना और आपके कमेंट्स ऐड करना। शो की बेहतरी के लिए आप हमें अपनी राय दें, आप ज़रूर बताएं कि हम किस तरह इस शो को मज़ीद बेहतर किस तरह बनाएं और कैसे इस शो को आगे लेकर बढ़ने वाले हों। उम्मीद है आप आज के एपिसोड से भी आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये सीखने वाला एपिसोड था। ये सीखने वाला एपिसोड है कि हम किस तरह ज़िंदगी में बेहतर बने, हम ये सीखने वाला एपिसोड है कि हम किस तरह लॉस को फॉलो करते हुए अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, किस तरह अपना अपना हिस्सा अदा करें ताकि हमारे पार्ट से हमारा मुआशरा तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें, हमारी अपनी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ बढ़े और हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को गुजारने वाले हों और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी में बेहतर की तरफ आगे बढ़ने वाले हों। फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अगले शो में नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है पूरे दिल से।